Let's start with Aries sign. Now, Aries sign for you, Jupiter is going to be in Gemini and it is going to take place in your third house. So, Jupiter's presence in your third house brings optimism and growth in third house related matters like communication, short distance travel, or relationship with your siblings and neighbors. This is also a very good or an excellent period for you to start something new, a new skill, like, or even going into writing or creative projects like blogging or podcasting. Now, your courage and your initiative will be amplified during this period, but I would advise you to avoid scattering of your energy across too many pursuits. Networking with like-minded individuals is going to open new opportunities, new doors for you. Now, Rahu will be entering in your 11th house in the sign of Aquarius, where it is going to fuel your ambition in your social networks, in your friendships, and take you towards your long-term goals. You'll attract influential connections, potentially in the field of technology, innovation, or even humanitarian field if you're already present in that field. However, Rahu's illusionary nature can tempt you to chase, unrealistic gains or even align you with unreliable groups. So try to stay grounded and prioritize authentic relationships to maximize that energy. Now, on the other hand, Ketu is going to be in the fifth house in the sign of Leo. This is going to encourage you to detach from ego driven pursuits, like especially in the field of romance, creativity, matters relating to your children, which is the significance of the fifth house. You may feel less attached to external validation in these areas, and you're going to allow your intuitive insight to guide you through this time, especially in your decision making. This is a time to explore unconventional creative outlets or even deepen your spiritual connection with if you're already in that field. Avoid impulsive romantic decisions, especially that are coming from ego. That Saturn is in Pisces in your 12th house, which is, this emphasizes on introspection, on spiritual growth, and managing those hidden challenges and expenses. So my advice is to balance your ambition with mindfulness, invest in skill building and genuine connections while practicing financial discipline. It is utmost for you to have a financial. Now, the key period for you during Jupiter is going to be during the mid-year. That is going to be the peak, but Saturn will give you challenges. They will intensify during the first and the fourth quarter. The challenge for you will be the anxiety and loss of clarity. So it is very important for you to balance water element and air element. Water for your emotions and air is for your distractions. So for this, you should clean and activate the northeast corner of your house. You can keep a copper pot with water and some tulsi in it. You can also place camphor in the east direction for clarity, and use salt lamps in the south direction. It is going to stabilize your fire element, which is the Ketu in the sign of Leo. चलिए आज बात करते हैं मेष राशि की। देखिए मेष राशि वालों, आपके गुरु जो हैं वो गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में और आपके तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव की सारी जो चीज़ें हैं वो एक्टिव होंगी, उन पे एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपके छोटे भाई बहन हो गए, आपके नेबर्स के साथ आपका रिश्ता कैसा, पड़ोसियों के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, आपकी छोटी यात्राएं। सो ये समय बहुत अच्छा है। ये समय आपके लिए नई चीज़ें करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया स्किल सीख सकते हैं इस टाइम पे, कुछ लिखना चाहते हैं वो कीजिए, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं जैसे ब्लॉगिंग हो गया, पॉडकास्टिंग हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है। इस टाइम पर आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत हिम्मत आएगी नए इनिशिएटिव लेने के लिए। पर ध्यान रखिए, जब आप नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो अपनी एनर्जी बहुत सारी चीज़ों पर मत लगाइए एक साथ। एक चीज़ को फिनिश कीजिए और फिर दूसरी पे जाइए। इस राहु जो है वो आपके 11वें भाव में जा रहे हैं कुंभ राशि में। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्किंग पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा होगा। आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, फ्रेंडशिप्स में बहुत एक्टिव होंगे, आप लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जिस तरह के आपके विचार होंगे उस तरह के लोगों के साथ आपका ज़्यादा मिलना होगा। जितना ज़्यादा आप मिलेंगे उतनी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, ठीक है। और ये ज़्यादातर होगा टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या वॉलंटियर वर्क में जो लोग ऑलरेडी हैं
उन लोगों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ करेंगी। लेकिन राहु जो है वो भ्रमित भी बहुत करता है, तो कोई भी जल्दी फायदे वाली चीज़ हो गया या गलत नेटवर्क है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो वहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो ग्राउंडेड रहिए, असली रिश्तों को समझने की कोशिश कीजिए, प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कीजिए। केतु सिंह राशि में आ रहे हैं आपके पंचम भाव में। अब ये समय जो है वो रोमांस हो गया, आपकी क्रिएटिविटी हो गया, आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं आप उनमें देखेंगे कि आप थोड़ा अलगाव आ रहा है आपके अंदर, आप थोड़ा हट रहे हैं वहाँ से। आपको बाहर से आपको वो नहीं चाहिए कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं कि आप मुझे बताएं मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। आप अंदर ज़्यादा अपने देखना पसंद करेंगे, आप अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, वहीं पर आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। लेकिन अगर आप अपने रोमांटिक फील्ड में या क्रिएटिव फील्ड में या बच्चों के साथ ईगो से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि सोच समझ के वो डिसीजन लीजिए। कि शनि जो है वो आपके 12वें भाव में बैठे गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं, या बिल्कुल अचानक या हिडन जो चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, खर्चे हैं, उन चीज़ों को दर्शाते हैं। सो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ईगो को बीच में मत लेके समझ से आगे चलिए। अब मेरी सलाह है कि आप अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको बहुत ही पीसफुली वाइजली आगे उनमें निवेश कीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और उनको ग्रो करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा मध्य साल के मध्य में, और शनि आपको दिक्कत देंगे फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में। इसको हम ठीक कैसे करें? आपको जल जो है अपने इमोशंस के लिए और वायु जो है आपकी डिस्ट्रैक्शंस के लिए बैलेंस करना है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना उत्तर पूर्व दिशा जो है उसको साफ करेंगे, यानी कि ईशान कोण। और वहाँ पे आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं आप, या तांबे के जार के अंदर, बर्तन के अंदर पानी डाल के उसके अंदर तुलसी डाल के रखिए। वहाँ पे पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट में आप कपूर रख सकते हैं, जिससे आपको स्पष्टता मिलेगी। दक्षिण दिशा जो है उसके अंदर आप सॉल्ट लैम्प, साउथ जो है ना उसमें आप सॉल्ट लैम्प जो है उसे रखेंगे, तो आपकी अग्नि तत्व जो वो बैलेंस होती है, जहाँ पर कि केतु जो है वो सिंह राशि में बैठ के आपको अलगाव दे रहा है। उम्मीद करती हूँ आप ये सारी की सारी चीज़ों को ट्राई करेंगे और आपको ये हेल्प करेंगी।